Hello, I am Abhishek, and in this video, we are going to discuss again a very good set based on reasoning. So, the question is PQRS and T were the five participants in a race. Before the race, there were five predictions made for the final position. The predictions were TRQPS, that means for first position, the prediction was made for T that T will finish the race at first position, R at second, Q at third, P at fourth, and S at fifth. Fine. Similarly, the second prediction, as per the second prediction, S will finish the race first, followed by P at second position, then T at third position, R at fourth position, and Q at fifth position. So these were the five predictions made by, let's say, five different people, right? Now the leftmost means the first position, as we have discussed that in this first prediction, the position of T is first. Fine. So the rank of T is first, and the rightmost means the fifth position in any sequence. No prediction was completely correct, but two of them correctly predicted the position of exactly two of the runners. The remaining three predictions were incorrect for all the five participants. Now here, the meaning of these lines is basically that out of the five predictions, in two predictions, two values were correctly placed. And in the remaining three predictions, zero values were correctly placed. Fine. So basically, this is the only condition that is given to us. Now, based on this condition, we need to find the outcome of the race, that who finished first, followed by whom, and so on. Fine. So here, I would like to suggest you to pause the video और एक बार try करिए इसे, then go ahead with the solution part. Okay, so let's discuss the solution of this set. Now see, as we know that only two persons were there, जिनका दो predictions correct था, and remaining three persons का all predictions were wrong. Fine, now this is the condition that is given to us. Now see, I have named the persons A, B, C, D, E to make the question to look a bit simpler. Fine. So A, B, C, D, E हम assume कर रहे हैं कि पांच different persons हैं जिन्होंने ये पांच predictions किए हैं. And this is for the first position, this is for the second position, and so on. Now first of all, हमको ये देखना है कि three basically rows are there जिसमें सारी values cross होने वाली हैं. Now suppose फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पोजीशन का आंसर एस होता और मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट पोजीशन पर एस आए होते तो यहां पर ये वैल्यू करेक्ट हो जाती, ये वैल्यू करेक्ट हो जाती और ये वैल्यू करेक्ट हो जाती, विच इज नॉट पॉसिबल. व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज आउट ऑफ दीज फाइव रोज तीन रो में सारे रॉन्ग आने चाहिए. फाइन, थ्री पर्संस वर देयर जिनकी सारे प्रेडिक्शंस करेक्ट थी. तो इस केस में बी, सी और ई की तीनों की एक एक प्रेडिक्शन तो सही हो जाएगी. तो दैट मींस किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में थ्री सेम वैल्यूज कभी भी आंसर नहीं हो सकती है. तो फ्रॉम हियर आई कैन डेफिनेटली से दैट एस इज नॉट द वन हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन. तो एस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. फॉर द सेम रीजन यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूं कि एस कैन नॉट कम एट पोजीशन नंबर 1. सेम गोज फॉर आर एट पोजीशन नंबर 2. यदि आर पोजीशन नंबर 2 पर आए होते तो 1, ए, सी एंड 3 पर्संस की ये वाली प्रेडिक्शन सही हो जाती. बट मैक्सिमम 2 पर्संस की ही प्रेडिक्शन सही हो सकती हैं. फाइन. तो दिस अगेन आर इज नॉट पॉसिबल फॉर सेकंड पोजीशन. वी कैन नॉट हैव आर एट सेकंड पोजीशन एंड फॉर द सेम रीजन वी कैन नॉट हैव क्यू एट पोजीशन नंबर 3. फाइन. सो लेट मी कैंसिल दिस. Now, for fourth position, you can see that we at max have two common values. P भी दो बार आ रहा है और T भी दो बार आ रहा है, तो we cannot cancel them out. Fine. For position number 5, we have all values which are different. So position number 5 पर at least one value correct होना चाहिए. At least one correct होगा because all 5 are different. कोई ना कोई तो fifth position पे आया होगा. So at least one of the values must be correct in position number 5. Now this was the initial information जिसको हम use कर पा रहे थे. Now apart from that, now we will check for E. E के पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं. Now इन दो persons में से suppose E is the one जिसकी दो prediction correct है. तो E की कौन कौन सी दो prediction correct हो सकती है? That can be only T and P.
टी और पी ही वो पोजीशंस है, वो बेट हैं, उसकी प्रिडिक्शंस हैं जो करेक्ट हो सकती हैं। तो लेट मी यूज सम डिफरेंट कलरिंग फॉर दिस। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग नाउ दैट पी का ये प्रिडिक्शन करेक्ट था और ई का ये प्रिडिक्शन भी करेक्ट था, ई की ये दोनों प्रिडिक्शंस करेक्ट हैं। Now, if this prediction is correct for position number 5, so all remaining predictions must be wrong. यदि P fifth position पर आए हैं तो ये सारा wrong होना चाहिए। P fifth position पे आए हैं तो fourth पे नहीं आ सकते, तो this must also be wrong. यहाँ पर भी P wrong होना चाहिए, यहाँ पर भी P wrong होना चाहिए, यहाँ पर भी P wrong होना चाहिए, because the correct position for P is position number 5. And similarly, the correct position for T is position number 4. So here it must be right. इसके अलावा जहां पर भी टी आ रहा है वो सारा रॉन्ग होना चाहिए। फाइन, नाउ सी ए इज द वन जिसके ऑल करेक्ट ऑल रॉन्ग आ चुके हैं, बी इज द वन जिसके 4 रॉन्ग हो चुके हैं और फिफ्थ भी रॉन्ग ही है, बिकॉज द करेक्ट आंसर फॉर पोजीशन नंबर 4 इज टी। वी आर अज्यूमिंग दिस, तो ये भी ऑल रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ चुका है। सी इज ऑल्सो द वन जिसके सारे रॉन्ग है, वो भी ऑल रॉन्ग कैटेगरी में आ चुका है। We need to have at least 2%, not at least 2%, basically exactly 2% must be there जिनकी 2 बेट करेक्ट होनी चाहिए थी। Fine. Now the only option apart from E that we have right now is option D. D वाले की भी 2 बेट करेक्ट करनी है, उसमें से एक बेट इनकी ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। So either Q must be correct over here और S must be correct over here. इन दोनों में से केवल एक करेक्ट हो सकता है। So let us assume कि Q करेक्ट है, I am assuming this. तो इस पोजीशन पे we have Q करेक्ट, इस पोजीशन के लिए we have T करेक्ट, इस पोजीशन के लिए we have P करेक्ट। Now इस पोजीशन के लिए what are the options that we have? See, we have option as R और S. सेकंड पोजीशन पे भी कोई तो आया होगा R और S में से, but R cannot come at position number second. Why? हमने पहले ही यहाँ पर कैंसिल कर रखा है। And S also cannot come at position number second. Reason being क्योंकि S यदि second पे आते हैं तो D की 3 bet correct हो जाएंगे। So from here we can say that this condition is not possible. So this is not possible. Fine. और ये possible नहीं है तो इसका मतलब E is the one जिसकी 2 bet correct नहीं हो सकती हैं, और E की यदि 2 bet correct नहीं हो सकती हैं तो ये जो सारे assumptions थे हमारे, I need to remove all this. रेड पेन से जो भी हमारा assumption था कि E का 2 करेक्ट है वो सारे we need to remove now. Fine. Now यहां से हम एक और बात कह सकते हैं कि if P is the one जिसकी 2 करेक्ट नहीं है, see there are 2 categories only. There are 2 categories only. अब यदि P की 2 bet करेक्ट नहीं होती है तो P must be the one जिसकी दोनों wrong हो. So from here we can say that this bet of P must be wrong और ये भी wrong होना चाहिए। Now if T is wrong for position number 4 तो ये वाला T भी कैंसिल होना पड़ेगा, तो ये भी हमने कैंसिल कर दिया। Fine. Now ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Now we'll check for some other case. Now let us check for C. Now E is the one जो किस कैटेगरी में आ रहा है, all 3 wrong वाली कैटेगरी में आ रहा है, all wrong वाली कैटेगरी में आ रहा है। Out of 3 person, 1 is E. Now let us check for position person number C. C के लिए चेक करते हैं। यदि हम C की दोनों बेट को करेक्ट मान लेते हैं तो अगेन लेट मी यूज सम डिफरेंट थिंग फॉर दिस। यदि हम C की सारी पोजीशंस को करेक्ट मान लेते हैं, 2 बेट C की करेक्ट मान ली हमने P और T, यही ऑप्शन थे। अब यहाँ पर T करेक्ट होता है तो दिस मस्ट बी रॉन्ग, दिस मस्ट बी रॉन्ग, T जहां पर भी आ रहा है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सारे रॉन्ग हो गए और P यहाँ पर करेक्ट है, फोर्थ पोजीशन पे P करेक्ट है, P के अलावा सब रॉन्ग हो जाएगा। P यहाँ नहीं आ सकता, तो ये सब मैंने कट कर दिया। नाउ सी, हमारे पास A एक ऐसे पर्सन आ गए जिनकी केवल एक बेट करेक्ट हो रही है, which again is not possible. Out of these 5 persons, 2 are the persons जिनकी 2 बेट करेक्ट है and 3 persons are there जिनकी 0 बेट करेक्ट है। तो यहाँ पर तो A की केवल एक बेट करेक्ट हो रही है, तो from here we can say that C की 2 बेट करेक्ट होना भी is not possible. तो apart from E, C is also one जिसकी तीनों बेट रॉन्ग हुई है। अब C का क्योंकि ये रॉन्ग हुआ है तो लेट मी रिमूव ऑल दिस, जो हमारा assumption था उसको पूरे को रिमूव करना पड़ेगा अगेन। नाउ we'll check for some other option. ठीक है, and from here we can fill one thing, what we can do is now from here we can say that C is the one जिसकी ये दोनों बेट रॉन्ग है और P यहाँ पर रॉन्ग है तो P यहाँ पर भी रॉन्ग होना चाहिए। फाइन, ओके।
तो अब हमारे पास जो कंडीशन बची है चेक करने के लिए, नाउ लेट अस चेक फॉर ए, क्योंकि ए के पास भी वी हैव टू ऑप्शंस ओनली। ए के लिए चेक करते हैं। नाउ इफ वी आर अज्यूमिंग कि दीज टू बेट्स ऑफ ए आर करेक्ट, यदि ये दोनों बेट ए की करेक्ट होती हैं तो यहाँ का करेक्ट आंसर डी होना चाहिए और यहाँ पे करेक्ट आंसर एस होना चाहिए। एस इस पोजीशन के अलावा जहां पर भी आ रहा है वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, एंड टी इस पोजीशन के अलावा जहां पर भी आ रहा है वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फाइन, ये हमने कर लिया। ठीक है, नाउ फॉर दिस पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन विद द करेक्ट आंसर इज टी, फॉर दिस फिफ्थ पोजीशन द करेक्ट आंसर इज एस। ऐसा होता है तो एस यहां पर भी रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी रॉन्ग हो जाएगी। फाइन, अब हम चेक करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं। अब देखिए यहां पर क्योंकि टी करेक्ट आंसर है तो यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, उसके बाद हम देखेंगे बी और डी के लिए चेक करते हैं एक बार। तो सी, ए इज द वन जिसके दो करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सी की बात करें तो इनके तीन रॉन्ग हो चुके हैं, ई की बात करें तो इनके थ्री रॉन्ग हो चुके हैं। तो बेसिकली वी नीड टू सिलेक्ट वन फ्रॉम बी एंड डी जिसके टू करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब सपोज वी अज्यूम कि P इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पोजीशन, तो फिर D का ये रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, और इस पोजीशन पे यदि हम P को करेक्ट मान लेते हैं तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। हियर वी कैन नॉट हैव द आंसर एज Q, हियर वी कैन नॉट हैव द आंसर एज S क्योंकि S यहाँ का आंसर हो चुका है, हियर वी कैन नॉट हैव द आंसर एज P, हियर वी कैन नॉट हैव द आंसर एज T क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चंस के पहले ही आंसर मान चुके हैं। Now the only option for position number 3 that we have is P, Q, R, S, T में से केवल R बचे हैं। बट अभी यहाँ पे हम R को करेक्ट मान लेते हैं तो ये वाला R फिर फोर्थ पोजीशन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन B का केवल एक करेक्ट हो पाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। हमें B के एटलीस्ट टू करेक्ट करने होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है तो लेट मी रिमूव द वैल्यूज जो भी हमने यहाँ फिल की थी। ओके, सो लेट मी रिमूव द वैल्यूज। ये जो भी रेड का है ये इस पर्टिकुलर केस का अजम्पशन था, तो ये सारी वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी। हमें यहाँ से ये भी पता चल गया है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो हमारा अजम्पशन था कि ए के दो सही हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए के भी सारी वैल्यूज रॉन्ग है, और ए की भी सारी वैल्यूज रॉन्ग होती हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम इन्हें रॉन्ग कर सकते हैं। फाइन, तो वी कैन कैंसिल आउट दिस वैल्यू। ओके, और हम इस वैल्यू को भी कैंसिल कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट द थ्री पर्संस जिनके तीनों आंसर रॉन्ग थे। नाउ वी डेफिनेटली कैन से दैट बी इज द वन जिसके टू करेक्ट हैं एंड डी इज द वन जिसके टू करेक्ट हैं। नाउ द कंफ्यूजन लाइज हियर कि कौन से दो करेक्ट हैं। फाइन, फॉर लाइक फॉर आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव टू ऑप्शंस ओनली और इन दोनों में से एक को करेक्ट मानना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि R इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम अज्यूमिंग दिस। Fine. Or let me use some different coloring so that we don't get confused over here. So R is the correct answer for this position. अब R यहाँ के लिए करेक्ट होते हैं तो it must be wrong for fourth position. Fine. और apart from that R और कहीं नहीं आ रहा है। Fine. तो इधर का we have got the answer is R. Now let us check for the other positions also. अब हमें D का एक और करेक्ट करना है। यदि सपोज हम यहाँ पर P को करेक्ट कर देते हैं सपोज, तो P यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ का करेक्ट आंसर वुड बी P दे। यहाँ पे सारे रॉन्ग हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इस केस में B का ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज P, तो फिर T नहीं हो सकता। तो B के दो करेक्ट नहीं हो पाएंगे। फाइन, B के दो करेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट यहाँ पर P ये करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन वी हैव अज्यूम कि R फिफ्थ का करेक्ट आंसर है। फाइन,
नाउ लेट अस चेक फॉर द सेकंड केस कि P की जगह यदि हम वहां पर S को करेक्ट कर दे तो, और इनफैक्ट Q को करेक्ट कर दे तो क्या होगा? यदि हम Q को यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी Q, तो Q यहाँ का आंसर नहीं हो सकता है। फाइन, फॉर फिफ्थ क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज R, R फिर यहाँ का आंसर नहीं हो सकता है। फाइन, नाउ B के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, B के दो करेक्ट करने हैं तो P और T को करेक्ट करना पड़ेगा, और यदि P यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे P करेक्ट हो चुके हैं तो S कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ लेट अस चेक QPT, and for fourth position we have only one option, that is S. अब यदि हम चेक करें QPTSR, तो see all the conditions are satisfied in this particular case. हमें एग्जैक्टली दो पर्सन ऐसे मिल चुके हैं जिनके एग्जैक्टली 2 आंसर्स करेक्ट हैं, हमें रिमेनिंग 3 पर्सन ऐसे मिल चुके हैं जिनके ऑल इनकरेक्ट हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर टू दिस सेट इज फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय Q, then P, T, S, R. So option B is the correct one. And I hope this question is clear to all of you. Thank you.